کراچی سے خیبر تک خوش آمدید۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ سیالکوٹ میں 12 روز قبل اغوا ہونے والے نوجوان کی لاش نہر سے برآمد۔ ورثاء کا لاش سڑک پر رکھ کر پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ ناروال میں رینجرز کی مہم برائے تحفظ ماحولیات شروع۔ کمانڈر چناب رینجرز کرنل احمد بلال نے پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ گوجرانوالہ میں 5ویں کلاس میں فرسٹ پوزیشن حاصل نہ کرنے پر ٹیچر نے طالب علم کو لوہے کے راڈ سے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ اسکردو میں جشن نوروز، مقامی کوہ مہماؤں کی جانب سے راک کلائمبنگ کا مظاہرہ۔ حکومت ڈرون حملے بند کرانے کے لیے اقدامات کرے۔ پشاور میں صدر فاتح اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی پریس کانفرنس۔ سکھر میں NCHT کے ملازمین کا اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ۔ شکارپور میں دیرینہ دشمنی پر کوسا اور بروہی قبائل کے درمیان تصادم۔ کوسا قبائل کے 3 افراد جاں بحق۔ اور کوئٹہ میں فائرنگ کے واقعے کے خلاف شٹ ڈاؤن ہڑتال۔ شہر کے اہم کاروباری مراکز اور دکانیں بند۔ صوبہ پنجاب میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناروال کی۔ ناروال میں رینجرز مہم برائے بہتری اور تحفظ ماحولیات شروع ہو گئی ہے۔ مہم کا باقاعدہ افتتاح کمانڈر چناب رینجرز کرنل احمد بلال نے پودے لگا کر کیا۔ اس موقع پر کمانڈر چناب رینجرز کرنل احمد بلال نے کہا کہ معاشرے کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب رینجرز نے اب تک بارڈر بیلٹ ایریا میں ہزاروں کی تعداد میں پودے لگا کر مہم کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ نئے DHQ میں بھی پودے لگائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی درختوں کی کٹائی کی روک تھام کے لیے بھی مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر EDO ہیلتھ ڈاکٹر افضال احمد اور MS ڈاکٹر امتیاز احمد چٹھا بھی موجود تھے۔ سیالکوٹ میں 12 روز قبل اغوا ہونے والے نوجوان کی لاش نہر سے برآمد ہو گئی ہے۔ ورثاء نے لاش سڑک پر رکھ کر پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ محلہ مبارک پورہ کے 22 سالہ ٹیکسی ڈرائیور حسن رضا کو 12 روز قبل ایک نامعلوم خاتون لاہور ایئرپورٹ لے گئی تھی، جس نے راستے میں ساتھیوں کی مدد سے حسن رضا کو قتل کر کے اس کی لاش نہر میں پھینک دی۔ دوسری جانب ورثاء کی طرف سے دی جانے والی درخواست کے باوجود پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا۔ 12 روز بعد مقتول کی لاش ندی پور کے قریب نہر سے برآمد ہوئی اور ورثاء نے مبارک پورہ چوک میں مقتول کی لاش رکھ کر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے DPO سیالکوٹ اور پولیس کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے ٹائروں کو آگ لگا کر ریلوے پھاٹک بند کر دیا، جس سے ٹریفک جام ہو گئی۔ ورثاء نے اعلیٰ پولیس حکام سے مطالبہ کیا کہ انہیں جلد از جلد انصاف فراہم کیا جائے۔ گوجرانوالہ میں اکیڈمی ٹیچر نے 5ویں کلاس میں فرسٹ پوزیشن حاصل نہ کرنے پر طالب علم کو لوہے کے راڈ سے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ذرائع کے مطابق باغبان پورہ کے رہائشی عبد المنان کا 12 سالہ بیٹا طلال مقامی اسکول میں 5ویں کلاس کا طالب علم ہے اور شام کو اکیڈمی میں ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے۔ سالانہ امتحان میں 4تھی پوزیشن آنے پر طلال اپنے اکیڈمی ٹیچر شہریار کو بتانے گیا، جہاں اس کے اکیڈمی ٹیچر شہریار نے فرسٹ پوزیشن نہ آنے پر اسے لوہے کے راڈ سے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور گھر بھیج دیا۔ طلال کے والد عبد المنان نے ٹیچر کی وحشیانہ تشدد پر میڈیکل کروانے کے بعد ٹیچر کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے درخواست دے دی ہے۔ جماعت الدعوہ کے امیر حافظ سعید نے کہا ہے کہ پرویز مشرف کے فیصلوں کو غلط قرار دینے والے امریکہ کی غلامی میں اس سے بھی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حافظ سعید نے کہا کہ نیٹو سپلائی بحال کی گئی تو روکنے کے لیے ہر آپشن استعمال کریں گے۔ شکست خوردہ امریکہ اور نیٹو فورسز کے لیے سپلائی بحال کرنا انہیں خطے میں مزید ٹھہرانے کی سہولیات فراہم کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت سے بجلی خریدنا پاکستانی دریاؤں پر بنائے گئے غیر قانونی ڈیموں پر بھارتی قبضے کو سند جواز فراہم کرنا ہے۔ پاکستان میں منظم سازشوں
اور منصوبہ بندی کے تحت مہنگائی اور بجلی بحران پیدا کیا جا رہا ہے۔ حافظ سعید کا کہنا تھا کہ 1 اپریل کو دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں ہونے والے اجتماعی جماعت الدعوہ کی دفاع اسلام کانفرنس دشمن قوتوں کے لیے ایک مضبوط پیغام ثابت ہوگی۔ خانیوال میں پولیس نے چھاپہ مار کر ہائی وے پر ٹرالر چھیننے والے بین الاضلاعی گینگ کے 10 ارکان گرفتار کر کے 1.5 کروڑ روپے مالیت کا لوٹا ہوا سامان برآمد کر لیا۔ خانیوال ضلع میں گزشتہ چند دنوں سے نامعلوم مسلح گینگ ہائی وے روڈ پر لوڈڈ ٹرالرز اور ٹرک اسلحہ کے زور پر چھین کر ڈرائیورز کو باندھ کر پھینک دیتے تھے، جس پر ڈی پی او خانیوال نے اس گینگ کی گرفتاری کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی، جس نے بین الاضلاعی گینگ کے سرغنہ غضنفر کو گرفتار کر کے 1.5 کروڑ لاکھ روپے اور مالیت کا لوٹا ہوا سامان برآمد کر لیا۔ ڈی پی او خانیوال ڈاکٹر وقار عباسی نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ اس گینگ کی گرفتاری بڑی کامیابی ہے۔ سرغنہ کے علاوہ اس گینگ کے مزید 9 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کا تعلق پنجاب کے مختلف اضلاع سے ہے۔ ابتدائی تفتیش میں ملزموں نے 19 سے زائد سنگین وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ ڈی پی او نے بتایا کہ گرفتار ملزمان سے ملنے والی معلومات کے بعد تفتیش کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے۔ سیالکوٹ میں عدالت نے غیر قانونی طور پر ورکنگ باؤنڈری لائن عبور کر کے پاکستان میں داخل ہونے کے الزام میں 2 بنگلہ دیشی شہریوں کو قید اور جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ بنگلہ دیشی ملزمان مجیب الرحمان اور محبوب الحق کو چند ماہ قبل رینجر اہلکاروں نے بھارتی علاقہ سے پاکستان میں داخل ہوتے ہی گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا تھا، جہاں ان دونوں کے خلاف بارڈر کراسنگ ایکٹ کے تحت باقاعدہ مقدمہ درج کر کے جیل بھجوا دیا گیا۔ ملزمان کے خلاف الزامات درست ثابت ہونے پر عدالت نے بنگلہ دیشی شہریوں مجیب الرحمان اور محبوب الحق کو 6 ماہ قید اور 2 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ملزمان کو جرمانہ ادا نہ کرنے پر مزید 15 روز قید بھگتنا ہوگی۔ عدالت نے ملزمان کے بارے میں بنگلہ دیشی سفارت خانے کو بھی اطلاع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اراکین پارلیمنٹ کو ترقیاتی فنڈز کے اجرا کے خلاف دائر درخواست واپس لینے پر نمٹا دی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے فیروز شاہ گیلانی ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت کی۔ درخواست گزار نے دلائل دیے کہ اراکین پارلیمنٹ کو ترقیاتی فنڈز دینا آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ آئین میں اراکین پارلیمنٹ کا کوئی انتظامی کردار موجود نہیں ہے۔ ترقیاتی فنڈز صرف ضلعی حکومت کے ذریعے خرچ کیے جا سکتے ہیں، اراکین پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں۔ حکومتیں ترقیاتی فنڈ کی آڑ میں ہارس ٹریڈنگ کو فروغ دیتی ہیں۔ نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان سے آگاہ کرنے کے لیے مری آرٹس کونسل کے زیر اہتمام 11 مقامی اسکولوں کے طلباء و طالبات نے خوبصورت ملی نغمے پیش کیے۔ آج کے نونہال مستقبل کا وہ اثاثہ ہیں جنہیں آئندہ اس وطن کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ ایسے میں نے نظریہ پاکستان اور اس کے قیام میں ان کے اسلاف کی قربانیوں سے آگاہ کرنے کے لیے مری آرٹس کونسل کے زیر اہتمام ایمفی تھیٹر میں 11 مقامی اسکولوں کے طلباء اور طالبات نے خوبصورت ملی نغمے پیش کر کے خوب داد لی۔ ہم سب کا پاکستان پاکستان پاکستان۔ اس موقع پر اس اوپن ایئر تھیٹر میں روشنی کے سفر کے عنوان سے تصویری نمائش بھی منعقد ہوئی، جس میں تحریک پاکستان کو تصاویر کی زبانی پیش کیا گیا۔ اس نمائش کا افتتاح گورنمنٹ کالج فار ویمن کی پرنسپل لبنہ شہزاد نے کیا۔ مقابلے کے شرکاء میں آرٹس کونسل کی جانب سے شیلڈ بھی تقسیم کی گئیں۔ تحریک پاکستان سے متعلق اس قسم کی تقاریب کا مقصد خصوصی طور پہ یہ ہے کہ بچوں کو ان کے اسلاف کی قربانیوں کا احساس دلایا جائے۔ امتیاز الحق، وقت نیوز، مری۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی بات کریں گے سیالکوٹ کی، جہاں نواحی گاؤں میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں 4 خواتین سمیت 15 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔
तहसील पसरूर के मौजा सेओड़ में बाअसर अफराद और इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से गंदे तालाब की कीमती अराजी और बस्ती के लोगों की मिल्कियती ज़मीन को गैर कानूनी करार देकर क्रेन की मदद से घरों को मसमार करने पर गांव के लोगों का आपस में झगड़ा हो गया, जिस पर दोनों ग्रुपों के लोगों ने असलहा से एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर दोनों ग्रुपों में की 4 खवातीन और एक बच्चे समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, ताहम अब तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। मंडी सादिगंज में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक पहुंच गया है। शहर में 5 घंटे मुसलसल बंदिश के बाद 1 घंटे के लिए बिजली की फराहमी से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर में जारी बदतरीन लोड शेडिंग से पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जबकि तलबा तालिबात को इम्तहान की तैयारी में भी दिक्कत का सामना है, जबकि अस्पताल में बिजली न होने से मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। दूसरी जानिब वापडा की तरफ से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वाले बिलों के खिलाफ सारिफीन ने सख्त एहतजाज किया है। उनका कहना है कि वापडा का ये फेल बदनीयती पर मबनी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि लोड शेडिंग फौरी तौर पर खत्म की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि पुलिस का आम लोगों पर तशद्दुद आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने पुलिस हिरासत में कत्ल होने वाले ताहिर नवीद की वालदा दिलशाद बेगम की जानिब से मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत की। अदालती हुक्म पर मुकदमे में मुलविस SHO मकसूद गुज्जर को अदालत के रूबरू पेश किया गया। मुल्ज़िम ने अदालत को बताया कि शहर से बाहर होने के बायस उसे पेश होने के लिए अदालती अहकामात का इल्म नहीं हो सका। अदालत ने इज़हार बरहमी करते हुए SSP ऑपरेशन से इस्तिफ्सार किया कि कत्ल जैसे संगीन इल्जाम के बावजूद मकसूद गुज्जर किस तरह अपने ओहदे पर काम कर रहा है। पुलिस आम शहरियों को तो मामूली मुकदमात में गिरफ्तार कर लेती है, मगर एक SHO कत्ल का मुल्जिम होने के बावजूद आज़ाद घूम रहा है और पुलिस अफसरान एक SHO के लिए अदालत में झूठ बोल रहे हैं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हिदायत की कि मामले की शफाफ तफ्तीश करके 5 अप्रैल तक रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। सियालकोट के एक निजी स्कूल में कराटे शो पेश किया गया, जिसमें नर्सरी क्लास की तालिबात ने कराटे के करतब दिखाकर शुरका के दिल जीत लिए। सियालकोट के निजी तालीमी इदारे में होने वाले कराटे शो में नर्सरी जमात की सैकड़ों तालिबात ने हिस्सा लिया। 2 घंटे तक जारी रहने वाले शो में तालिबात ने कराटे के मुख्तलिफ जौहर पेश किए और शुरका को दाद देने पर मजबूर कर दिया। कराटे शो का एहतमाम स्कूल इंतजामिया की जानिब से किया गया था और शो में बच्चियों के वालिदैन और शहर की मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। कराटे के करतबों का मुजाहरा करने वाली तालिबात की तरबियत कराटे के माहिरीन से करवाई गई थी। शो के अख्ताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली बच्चियों को इनामात भी दिए गए। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा अप्लाइड साइकोलॉजी में सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बैडमिंटन, लूडो, शतरंज और दीगर खेल पेश हुए, जिसमें तालिब इल्मों ने भरपूर शिरकत की। रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बैडमिंटन, लूडो, शतरंज और दीगर खेल शामिल थे, जिसमें तालिब इल्मों ने भरपूर शिरकत की। फेस्टिवल में खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए, जिससे तलबा खूब लुत्फानंदोज हुए। तालिब इल्मों का कहना था कि इस तरह की तकरीबात उनके लिए बहुत जरूरी हैं। इससे उन्हें न सिर्फ अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलता है, बल्कि दोस्तों के साथ गुजरे ये पल उनके लिए यादगार होते हैं। उनका ये भी कहना था कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया को चाहिए कि साल में 2-3 बार इस तर्ज के स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक्किद करवाए जाएं। स्पोर्ट्स डे होना चाहिए, क्योंकि डेली रूटीन से बहुत थक जाते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स डे बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम इंजॉयमेंट का हमें भी मौका मिले। स्पोर्ट्स डे होना चाहिए, अच्छा है, फन होता है, गेम्स होती हैं, मज़ा आता है, पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे। इस तरह की छोटी छोटी गेट टुगेदर्स होती रहनी चाहिए, जिससे सबको पता चले कि हमारे में ये टैलेंट है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स में कितना जोश है, और एक्टिविटी से जो तंग आ जाते हैं रेगुलर एक्टिविटी से, असाइनमेंट वगैरह से, वो यहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है हम स्टूडेंट्स के लिए। नूरपुर थल में बारिशें न होने और गर्दालूद हवाओं के सबब चने की फसल बुरी तरह से मुतासर होने से पैदावार में कमी का खदशा बढ़ गया है। थल में हर साल 6,18,514 एकड़ रकबे पर चने की काश्त की जाती है,
जिस से 120 मेट्रिक टन फसल मतवक्के थी, मगर इस बार बारिशें कम होने की वजह से पैदावार में 40% कमी का सामना है, जिससे इस साल कीमत बढ़ने का भी इम्कान है। इस इलाके में बारिशें न होने से खुश्क साली का सामना भी करना पड़ता है। इस साल भी इलाके को सख्त खुश्क साली का सामना है। किसान तंजीमों ने हुकूमत से अपील की है कि नूरपुर थल को आफत ज़दा करार देकर काश्तकारों के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। और अब कुछ खबरें खैबर पख्तूनख्वा से। फारा स्टूडेंट्स फेडरेशन वजीरिस्तान के सदर खान बहादुर वजीर ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर ड्रोन हमले बंद कराने के लिए इकदाम करे। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि रिज़्म कैडेट कॉलेज वजीरिस्तान से मुंतकिल नहीं करने देंगे, जबकि हुकूमत फारा की तमाम एजेंसियों के लिए मेडिकल कॉलेज के ऐलान के साथ साथ फाटा में तालीमी इदारों का जाल बिछा है। उन्होंने मुतालबा तस्लीम न होने की सूरत में एहतजाजी तहरीक शुरू की, जिसकी तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। कौमी इस्लाही जुर्गा के सरपरस्त आला अख्तर अली खान एडवोकेट ने कहा है कि TMA बटखेला की तरफ से नहर किनारे आबाद लोगों को बिला जवाज नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मालाकन प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अख्तर अली खान का कहना था कि TMA बटखेला से बिला जवाज नहर किनारे आबाद लोगों को सरकारी अराजी खाली करने का नोटिस जारी किया है। नहर अपर सवात और किनारे पर वाक़ अराजी किसी सरकारी इदारे की मिल्कियत नहीं, बल्कि कौमी इस्लाही जुर्गा के मुशीरान ने नहर के लिए ज़मीन महकमा अनहार को 1907 से किराए पर दे रखी है, जिसके सालाना किराया में अदालत के हुक्म पर हर साल 10% इजाफा भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि TMA बटखेला ने कानूनी मिल्कियती हैसियत मालूम किए बगैर नोटिस जारी करके अवाम को एहतजाज पर मजबूर किया है। हम मुतालबा करते हैं कि जारी करदा नोटिस को फौरी तौर पर वापस लेकर मकीनों में पाई जाने वाली बेचैनी ख़त्म की जाएगी, बसूरत दीगर लोग एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। और अब कुछ खबरें गिलगित बल्तिस्तान से। इस गर्दू में जारी यौम पाकिस्तान और जश्न नौरोज के मौका पर मुकामी कोपेमाओं ने रॉक क्लाइंबिंग का शानदार मुजाहरा किया। मुकामी कोपेमाओं की तंजीम खरपाकरीर के ज़ेर एहतमाम खरपोचों की पहाड़ी पर होने वाली रॉक क्लाइंबिंग के मुकाबले में 30 पेशावर कोपेमाओं के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों और डिग्री कॉलेज स्कर्दू के तलबा ने भी हिस्सा लिया। इस मौका पर कोपेमाओं ने मुहिम जोई के दौरान हंगामी सूरत हाल में रस्सियों की मदद से मुख्तलिफ अंदाज में महफूज मुकामात पर उतरने और जख्मियों को निकालने के लिए रेस्क्यू का मुजाहरा भी किया। और अब कुछ खबरें सिंध धरती से। हमदर्द इत्तेहाद फाउंडेशन के सदर सैयद सुल्तान शाह ने कहा है कि कराची में भत्ता माफिया और लैंड माफिया ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध पुरअमन लोगों की धरती और औलिया कराम की सरजमीन है। हमदर्द इत्तेहाद सिंध में होने वाली कत्ल गारतगरी और भत्ता खोरी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। उनका कहना था कि अगर हुकूमत सूबे में अमन अमान कायम नहीं कर सकती तो मुस्ताफ़ी हो जाए। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो सिंध में अमन अमान के क़याम में अपना फ़ाल किरदार अदा करें। सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मेहरी ने कहा है कि पार्टी रहनुमा वाहिद बख्श संगरासी के बेटे को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। हैदराबाद प्रेस क्लब में खिताब करते हुए उनका कहना था कि 3 रोज कबल बदीन पुलिस ने सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा वाहिद बख्श संगरासी के घर पर छापा मारा और उनकी अदम मौजूदगी में उनके बेटे सदाम हुसैन संगरासी को साथ ले गए, जबकि 3 रोज गुजर जाने के बावजूद सदाम संगरासी पर कोई मुकदमा कायम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस अमन अमान कायम करने के बजाय करीब आवाम को तंग कर रही है। अगर 24 घंटे के अंदर सदाम हुसैन को रिहा न किया गया तो हालात की तमाम जिम्मेदारी
بدین पुलिस पर आयद होगी। हैदराबाद में सिंध पीपल्स लेबर ब्यूरो का इजलास लाल बख्श कलहोड़ो की सदारत में मुनाकिद हुआ। इजलास में बदीन टंडू मोहम्मद खान, जामशोरो और दीगर इस्लाह के अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 4 अप्रैल को होने वाली 33वीं बरसी के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई है। इजलास में करारदादों के जरिए मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध असम्बली के मेंबरान को धमकी आमेज खतूत, दहशतगर्दी और जलाओ घिराव में मुलव्विस दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। इजलास से पीपल्स लेबर ब्यूरो के डिवीजनल सदर लाल बख्श कलहोड़ो, गुलाम हुसैन, मौला बख्श जसकानी और मुख्तार कोरेचो ने खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। हिस्को की जानिब से जामशोरो कोटरी समेत दीगर इलाकों में बिजली के नए मीटर की तनसीब पर शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। शहर भर में हिस्को की जानिब से 4 करोड़ रुपए की लागत से नए मीटर की तनसीब का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके खिलाफ शहरियों ने बड़ी तादाद में एहतजाज करते हुए हिस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर शहरियों का कहना था कि नए मीटरों में डिजिटल सर्किट न होने की वजह से बिजली न होने पर भी मीटर चल रहे हैं, जिसके बायस बिजली का इजाफी डबल बिल सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नए मीटरों की तनसीब बंद की जाए। दूसरी जानिब प्रोजेक्ट इंचार्ज का कहना है कि जिला भर में नए मीटरों की तनसीब से बिजली चोरी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर भुट्टो और मौलाना अब्दुल हक मेहर ने कहा है कि कराची में दहशतगर्दी सोची समझी साजिश के तहत की जा रही है। सखर में सालेपट के करीब गोट दीनपुर महर में मुनाकिदा इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि कराची में दहशतगर्दी के वाकयात, बेगुनाह लोगों का वहशियाना कत्ल और लोगों की इमलाक को तबाह करना सिंध के खिलाफ आलमी साजिश है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने सियासी मुफादात और इक़्तिदार को बचाने के लिए चुप साध रखी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कराची की रौनकें बहाल करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। कारकुन के कत्ल पर सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सैकड़ों कारकुनान का एहतजाजी मुजाहरा नेशनल प्रेस क्लब से टावर चौक तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सदर दिलमुराद धानी, सरमद जाकिरानी और शाहनवाज मरहटो ने की। मुजाहिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि कातिलों का ताल्लुक MQM से है, उन्हें सियासी दबाव की परवाह किए बगैर गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि हम सिंधी अपनी जान दे देंगे मगर सिंध धरती पर लुटेरों को नहीं रहने देंगे। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिस पर MQM के खिलाफ नारे दर्ज थे। सखर में NCHT के मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कराची में बिलावल हाउस के करीब NCHT के मुलाजमीन के पुरअमन एहतजाज पर शेलिंग और हवाई फायरिंग की शदीद मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि गिरफ्तार मुलाजमीन को फौरी रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि NCHT के मुलाजमीन पाकिस्तान में तालीम की बेहतरी के लिए गुज़िश्ता 10 सालों से सरगर्म हैं, ताहम अभी तक उन्हें रेगुलर नहीं किया जा रहा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि आर्जी मुलाजमीन को फौरी तौर पर रेगुलर किया जाए। महरान यूनिवर्सिटी जामशोरो में 3 रोज़ा कसीरुल मौज़ूआती बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर और कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम अकीली ने कहा है कि इस किस्म के बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह के स्कॉलर्स और तहकीक दानों को IT के मुख्तलिफ शोबों में होने वाली तब्दीलियों और मुस्तकबिल के मसाइल से आगाही हासिल होती है। उन्होंने कहा कि 30 से ज़ायद ममालिक से 250 पेपर्स की जांच पड़ताल और इंतखाब मुश्किल था, मगर टेक्निकल प्रोग्राम कमेटी ने ये काम एहसन तरीके से मुकम्मल कर लिया है। मेहमान खुसूसी फुरकान हबीब कुरैशी ने कहा कि इस किस्म की कॉन्फ्रेंस मुनाकिद कराने पर यूनिवर्सिटी तारीफ की मुस्तहिक है। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों में बाहमी राब्ता और ताउन बढ़ता है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस से मुतालिक आगाही देते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस को एक ही वक्त में 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जबकि 8 अहम स्पीकर मुख्तलिफ शोबों में वाक़े होने पर तब्दीलियों पर रोशनी डालेंगे। कॉन्फ्रेंस में तलबा, असातिज़ा और स्कॉलर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीरपुर खास में
गंदम की फसल की कटाई शुरू होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से अभी तक सरकारी खरीदारी सेंटर कायम नहीं किए गए। शहरों में रवा साल तबाहकुन बारिशों के बाद गंदम की फसल की कटाई शुरू हो गई है, जबकि हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी के लिए किसी सेंटर का क़याम अमल में नहीं लाया गया, जिसके बायस कमीशन माफिया हरकत में आ चुका है। दूसरी जानिब किसानों का कहना है कि हुकूमत ने गंदम के निर्ख 1050 रुपये फी मन मुकर्रर किए हैं, जबकि सरकारी खरीदारी ना होने के सबब कमीशन माफिया काश्तकारों में 800 रुपये फी मन के हिसाब से गंदम खरीद रहा है। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गंदम की खरीदारी के लिए जल्द सरकारी सेंटर्स खोले जाएं और कमीशन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कराची में नर्सों के एहतजाज के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ नोकोट पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाजन ओपीडी का बायकॉट कर दिया है। अस्पताल के अमले के बायकॉट की वजह से इलाज के लिए आने वाले मरीज खुसूसन बच्चे और खवातीन शदीद गर्मी में कतारों में बैठकर कई घंटे इंतजार करते रहे, जबकि कई मरीज वापस घरों को लौट गए। बादशाह पैरामेडिकल स्टाफ नोकोट की सदर की क़यादत में अस्पताल के अमले ने कराची में नर्सों पर पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर मुजाहिरीन ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध रखी थी और हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। कंदकोट में सफाई मुहिम शुरू हो गई। डिप्टी कमिश्नर ने बाकायदा मुहिम का इफ्तिताह किया है। सफाई मुहिम के इफ्तिताह के बाद मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और शहर के सियासी और समाजी शोबों से वाबस्ता अफराद ने शहर की सफाई मुहिम में हिस्सा लिया और शहर भर के मुख्तलिफ रास्तों को साफ किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर मिठियानी का कहना था कि सफाई निस्फ ईमान है, लिहाजा हमें अपने घरों की तरह अपने मोहल्लों और शहर भर को साफ रखना चाहिए। शिकारपुर में दरीना दुश्मनी पर कोसा और बरोही कबाइल के दरमियान तसादुम के नतीजे में कोसा कबाइल के 3 अफराद जाम भाग हो गए हैं। दोनों कबाइल ने एक दूसरे पर जदीद असलहे से फायरिंग की, जिसके नतीजे में कोसा कबाइल के 3 अफराद अब्दुल नबी मीर कोसा और कादिर बख्श कोसा मौका पर हलाक हो गए, जबकि फायरिंग से बरोही कबाइल का एक शख्स शफी मोहम्मद जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद दोनों कबाइल अपने अपने इलाकों में मोर्चाबंद हो गए हैं, जबकि इलाके में खौफ व हरास की फजा बरकरार है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मारवी मेमन ने कहा है कि सिंध के वसाइल इन दहशतगर्दों और वज़रा पर खर्च हो रहे हैं जो हुकूमत में बैठे हैं। कराची में अपनी रहायशगाह पर यूथ पार्लियामेंट से खिताब करते हुए मारवी मेमन ने कहा कि मैं अपनी और अपनी क़यादत की गारंटी देती हूँ कि सिंध के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ही एक कौमी और प्रोग्रेसिव जमात है जो मुल्क के अवाम को मसाइल से निकालेगी। मारवी मेमन ने कहा कि सिंध के अवाम ये सोचना बंद कर दें कि पीपल्स पार्टी ही उनका ऑप्शन है। अवाम PMLN को वोट दें क्योंकि वो भी सिंध की जमात है और हम आइंदा इंतखाबात में नए उम्मीदवारों को मौका देंगे। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से सिंध के नौजवानों के लिए 20 नुकाती एजेंडा भी जारी किया गया। तकरीब से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सलीम ज़िया और इरफानुल्लाह मरवत ने भी खिताब किया। दादू के नवाही गांव में घरेलू तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया है। बच्चे लगारी में घरेलू तनाज़े पर लगारी बरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में गुलाम मुस्तफ़ा लगारी शदीद जख्मी हो गया, जिसे सिविल अस्पताल दादू मुंतकिल कर दिया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इस मौका पर मकतूल के भाई गुलाम शबीर ने मीडिया को बताया कि 2 साल कबल जो आबदारों ने एक खातून को अगवा किया था, जिसका मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया और आज उनका भाई गांव से दादू जा रहा था। रास्ते में जवाबदार लाइक लगारी, हसन लगारी और अयूब लगारी ने फायरिंग करके उसे हलाक कर दिया। उनका कहना था कि मुल्जिमों के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज होने के बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो आज़ाद घूम रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे बलोचिस्तान से। कोयरा में इस्मनी रोड पर फायरिंग के वाक़े के खिलाफ शटडाउन हड़ताल जारी है।
शहर के अहम कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद कर दी गई हैं। कोयटा में हड़ताल हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और पश्तून मिली अवामी पार्टी की अपील पर की जा रही है। शहर के अहम कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद हैं, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक भी न होने के बराबर है। नवाही इलाके बरौरी में गुज़िश्ता रोज़ जलाओ घेराव और कशीदगी के बाद आज सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और ATF की भारी नफरी बरौरी रोड और मुल्हिका रिहायशी इलाकों में तैनात है। कोयटा में गुज़िश्ता रोज़ गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग से 8 अफराद की हलाकत का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जबकि जाँ बहक अफराद की तदफीन हज़ारा कब्रिस्तान में की जाएगी। जाफराबाद में नादरा का अमला शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। शहरियों ने प्रेस क्लब जाफराबाद में शिकायतों के अंबार लगा दिए। नादरा अमले ने शहरियों के सैकड़ों कार्ड मामूली एतराज़ात लगाकर ब्लॉक कर दिए, जिसके बाद सैलाब मुतासिरीन वतन कार्ड से भी महरूम हो गए हैं। जाफराबाद प्रेस क्लब में वक्त न्यूज़ से बातचीत करते हुए एक मुतासरा शहरी का कहना था कि नादरा अमले ने जो कार्ड जारी किया है उसमें इसकी बीवी को उसका खामन जाहिर किया गया है। उसका कहना था कि जब वो नादरा ऑफिस गया तो उसे टाल दिया गया। दीगर शहरियों का कहना है कि महीनों बाद भी मामूली एतराज़ात दूर नहीं किए जाते। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि नादरा अमले की ज़्यादतियों का सख्ती से नोटिस लिया जाए। बलोचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर सैयद अशरफ ने कहा है कि उनके कबीले के 5 अफराद के कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सैयद अशरफ सैदी ने कहा कि उनके कबीले के 5 अफराद की हलाकत काबिल मज़म्मत है। इस अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ बलोचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस, हज़ारा कौमी जिरगा, इत्तेहाद ताजरान और दीगर जमातें मिलकर पुरअमन एहतजाजी तहरीक चलाएंगी। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत क़याम अमन के लिए अमली इक़दाम करने की बजाय सिर्फ फोटो सेशन के तौर पर अमन इजलास मुनाकिद कर रही है। शहर में हज़ारा कौम की टारगेट किलिंग से अब तक 800 से ज़ायद निहत्ते अफराद को शहीद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत सानहा मस्तोंग में मुलविस लोगों को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाती तो शायद ऐसे हालात पैदा न होते। तहरीक इंसाफ ने 20 अप्रैल को कोयटा में जलसे का ऐलान कर दिया है। जलसे से पार्टी की आला क़यादत खिताब करेगी। तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 20 अप्रैल को कोयटा में जलसा मुनाकिद किया जाएगा। इस हवाले से इंतजामात के लिए नवाबज़दा हमायूं जोगिज़ई की क़यादत में कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो जलसे की जगह का तयन करके इंतजामात को हतमी शक्ल देगी। उन्होंने कहा कि कोयटा में 25 मार्च से मेंबर साजी मुहिम शुरू कर दी गई है, जो 2 माह तक जारी रहेगी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमें तहलील करके नए ओहदेदारों का इंतखाब किया जाएगा। कराची से खैबर तक के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।